Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So our God is a God who wants to speak to us every day with a new divine word of God. सो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है कि जो रोज बरोज हमसे नई आत्मिक बातों से बात करना मांगता है। So we should fully focus on Him. सो हमारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। So today is the Women's Day. सो आज महिला दिवस है। So may God bless all the women, those who are growing in the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर उन तमाम महिलाओं को आशीषित करे जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। So let us pray today God should raise the women in each and every family with a more spiritual grace. सो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक परिवार में आत्मिक महिलाओं को अपने अनुग्रह में बढ़ाए। So they should not disturbed with any unwanted fear or unwanted any kind of the disturbance in their life. और वो अपने जीवन में किसी भी अनचाही डर या किसी भी अनचाही बात से ना डरे ना घबराए। They should full of the God's grace. वो परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण होने They should चाहिए। not disturbed with the badly any kind of the work of the devil. वो शैतान के किसी भी संसार रूपी कार्य से प्रभावित नहीं होने पाए। They should rise up in their spiritual life. वो अपने आत्मिक स्तर में बढ़ने पाए। So let us pray very specially today. और आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। So what Bible talk about the successful women? सो जो वचन है वो प्रभावशाली महिलाओं के बारे में क्या कहता है? So Proverbs 31:10. सो नीति वचन 10, So Proverbs 31:30. नीति वचन 30, 31:30 says, 31 का 30 कहता है, charm and can mislead, and beauty soon fades. The woman to be admired and praised is the woman who lives in the fear of God. वचन कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। So let us pray every woman should filled with the more fear of God in their life. सो हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक स्त्री परमेश्वर के भय में पाई जाए। So the same way the entire family filled with the fear of God. और ठीक उसी तरह पूरा परिवार परमेश्वर के भय में भरा हो। Psalm 128:1 says, और भजन संहिता 128 का एक वचन कहता है, Blessed is the everyone who fears the Lord, who walk in his ways. और क्या ही धन्य है वो हर जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। So everyone who have the fear of the Lord and walking with the fear of God in their life, they will be blessed. सो हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और अपने जीवन में परमेश्वर के भय के साथ आचरण करता है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित ठहरता है। Psalm 128:3 says, भजन संहिता 128:3 कहती है, Your wife shall be like a faithful wine. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता के समान Faithful and होगी, fruitful wine. एक बहुत ही विश्वास योग्य और फलवंत। So may God bless every one of you. सो परमेश्वर आप में से हर एक को आशीषित करे। So in the Bible we are very much the women's character written. So one of the important person name is Ruth. सो वचन में बहुत सारी महिलाओं के चरित्रों का उल्लेख है और इनमें से एक चरित्र है रूथ। So Ruth chapter 1 verse 16. रूथ की पुस्तक अध्याय 1 वचन 16। So here this woman take a very strong decision in her life. और यहाँ पर ये महिला एक बहुत ही कठिन निर्णय लेती है। So both side was a great darkness for her. और उसके लिए दोनों तरफ ही अंधेरा था। So but she has to take the strong decision in her life. लेकिन उसे अपने जीवन में एक कठिन निर्णय तो लेना था। So that time God opened her eyes. और तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। She seen the God of Israel. उसने इज़राइल के परमेश्वर को देखा। So then she is putting her statement like this. और उसके बाद वो इस तरह अपना वक्तव्य रखती है। So her aunt called Naomi. सो उसकी जो माता थी नौमी, So she is telling her, daughter, you go back to your home. वो अब उससे ऐसे कहती कि बेटी तू अपने घर वापस चली जा। You seek your blessed future where you are. तू जहाँ जाएगी वहाँ तेरा भविष्य सुरक्षित है। But Ruth had a vision. लेकिन रूथ के पास एक दर्शन था। One day Jesus is going to be born in my generation.
एक दिन शायद यीशु मेरी पीढ़ी में पैदा होंगे। So that was her vision. और यही तो दर्शन था। Exactly, if you read Matthew chapter 1, her name is also in the genealogy of the birth of Jesus Christ. जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो वंशावली में रूत का जिक्र आता है। So God can raise to any woman. सो परमेश्वर किसी भी महिला को खड़ा कर सकता है। The women having the great vision for Jesus. उस स्त्रियों के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन था The यीशु को women लेकर। having a great passion for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए एक जलन थी। So Ruth 1:16 says, रूत की पुस्तक 1:16 वचन कहता है, Ruth is boldly declaring her statement. रूत बहुत ही निर्भीकता से यहाँ अपनी बात को करती है Naomi, where you go, I will go. कि नौमी जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, Where you stay, I will stay. जहाँ तू ठहरेगी वहाँ मैं ठहरूंगी। Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे, Your God, my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर Your होगा, God, my God. तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। That was the strong declaration of Ruth. और ये रूत की एक ऐसी कठिन उद्घोषणा थी God honored her. और परमेश्वर ने उसे सम्मानित In her किया। life, she restored everything back. उसने अपने जीवन में सब कुछ फिर से वापस पाया God brought her into the great promised blessing. और परमेश्वर ने उसे अपने किए हुए वायदे का सबसे उत्तम दिया। Take a decision like Ruth today. रूत के जैसा आज एक निर्णय ले। Lord, you are my God, I will never leave you. ओ परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Lord, lead me on. ओ परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन My करे। future may be like a dark for me, शायद मेरा भविष्य अंधकार है, but I know that God can change all my darkness into light. लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर हर एक अंधेरे को रोशनी में बदल My देगा। God is the light of the world. मेरा परमेश्वर तो जगत की ज्योति है, He will brighten my future. वो मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। Because Jesus lives, I can face tomorrow. और यीशु तो ऐसे जिया ताकि हम कल को देख सके। That was the statement of Ruth. और यही तो रूत की बात थी। So one more woman, Mary Magdalene. एक और स्त्री का जिक्र है जिसे हम मरियम मगदलिनी के नाम से जानते हैं। Matthew chapter 28 verse 1. मत्ती की इंजील अध्याय 28 वचन 1। This woman very first saw Jesus Christ after his resurrection. और ये स्त्री वो स्त्री थी जिसने यीशु को पुनरुत्थान के बाद सबसे पहली बार देखा। So early in the morning, very night, she went to look at the tomb of Jesus Christ. और भोर के समय जब अंधेरा ही था वो यीशु के कब्र के पास जाती है। So like that, you should have the great desire in your prayer life. ठीक उसी तरह प्रार्थना के जीवन को लेकर के भी आपके हृदय में एक इच्छा होनी So चाहिए। in home, the women should all the time in prayer. सो घरों में रहने वाली महिलाएं वो हमेशा प्रार्थना में होनी चाहिए। Early morning prayer will open your eyes to see Jesus face to face. सुबह सवेरे की प्रार्थना आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगी कि आप यीशु को रूबरू देख सके। The Mary Magdalene able to see Jesus face to face. मरियम मगदली ने यीशु को रूबरू देखा। So the another one is Hannah in the Bible. दूसरी महिला जो है जिसका जिक्र है वो है हन्ना। 1 Samuel 1:18. पहला सैमुएल 1 उसका 18। Hannah had a powerful prayer time with God. हन्ना परमेश्वर के साथ एक बहुत ही सशक्त प्रार्थना का समय गुजारती थी। Hannah poured out her heart in the presence of the Lord. और हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल कर रख दिया After था। that, she never allowed the worldly sorrow into her heart. और उसके बाद उसने संसार के दुख को अपने हृदय में जगह करने कभी नहीं दिया। Her spiritual eyes are open. उसकी आत्मिक आंखें खुल गई थी। 1 Samuel chapter 2 verse 10, she is prophesying. पहला सैमुएल अध्याय 2 वचन 10 वो भविष्यवाणी कर रही She थी is prophesying like this. और वो इस प्रकार भविष्यवाणी कर रही It is थी। not by strength that one prevail. और ये कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं जिससे सब कोई झेल सके। Those who oppose the Lord will be broken. और वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक चीज को तोड़ देता The है Most High will thunder from heaven. और सबसे ऊंचे पर वो परमेश्वर है जो गरजता The है। Lord will judge the ends of the earth. और परमेश्वर जो है वो जगत के छोर तक न्याय करेगा। She may able to see Jesus Christ, the judge of the entire earth.
वो शायद यीशु को देख पा रही थी जो पूरे संसार का ब्रह्मांड का न्यायपति था। Pray like Hannah. हन्ना के समान प्रार्थना करें। You will receive lots of revelation and you will start to prophesy. आपको बहुत सारे दर्शन मिलेंगे और आप भी भविष्यवाणियां करना शुरू करेंगे। Another person, Eve, the first woman in the Bible. दूसरी महिला हव्वा है। So Genesis 3:20. उत्पत्ति की पुस्तक 3 उसका 20 वचन। The man called his wife name Eve because she was the mother of all living. और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि वो सारे जीवित प्राणियों की आदि माता हुई। Eve became a mother of all living. हव्वा जीवित प्राणियों की माता बनी। So if you are also having a very close walk with God, तो जब आप परमेश्वर के साथ बहुत करीब होके चलते हैं so the heaven will be open for you. तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। You are going to be a spiritual mother of millions of the new believers. आप बहुत सारे नए विश्वासियों की आत्मिक माता बनेंगी। Such a way the Lord will equip you and establish you in your spiritual life. और इस तरह परमेश्वर आपको आपके आत्मिक जीवन में स्थिर करेगा और संगठित करेगा। Eve called as a mother of all living. और हव्वा वो हर एक जीवित प्राणी की आदि माता कहलाई। So in your life also there is a purpose. तो आपके जीवन का भी एक उद्देश्य है। As a woman, increase your prayer time. एक महिला के तौर पर अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं। Increase your Bible reading time. अपने वचन पढ़ने के वक्त को बढ़ाएं। So through you many new people will be blessed. और आपके जरिए बहुत सारे नए लोग आशीषित होंगे। Another person, the woman Deborah. दूसरी स्त्री जिसका जिक्र है उसका नाम डेबोरा है। So Judges chapter 4. न्यायों की पुस्तक अध्याय 4। Until Deborah rise up, और जब तक डेबोरा जब खड़ी हुई the villages are fallen. तो वो जो गांव थे वो गिर गए। Everywhere there is a chaos. और हर एक जगह हाहाकार मच गया। Everywhere there was a trouble. हर एक जगह विपत्ति थी। Deborah rose up. और डेबोरा खड़ी हुई। Then the enemies are destroyed. और फिर दुश्मनों का नाश हुआ। Judges 4:9 says. और न्यायों की पुस्तक 4:9 इस प्रकार कहती है। Deborah went to the battlefield. डेबोरा युद्ध की भूमि पर जाती है। She prophesied. वो भविष्यवाणी करती है। So there the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman. और परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक स्त्री के द्वारा छुटकारे की घोषणा को दिया। So the women killed the Sisera. और उस महिला ने सिसेरा को मारा। The enemy destroyed through a woman. और एक शत्रु का नाश एक स्त्री के द्वारा हुआ। So you should prophesy. और इसलिए आप भी भविष्यवाणी कर पाएंगे। Every woman should prophesy. हर एक महिला भविष्यवाणी करेगी। That is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। So today ask the Lord, Lord, give me the gift of the prophecy. So आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। Revelation 19:10. प्रकाशित वाक्य 19:10। The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा जो है वो भविष्यवाणी का वरदान है। The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. यीशु मसीह का जो वरदान है, यीशु मसीह की जो गवाही है वही भविष्यवाणी का वरदान है। Each and every woman in your mouth all the time there should be a testimony of Jesus Christ. आप में से हर एक महिला की ज़बान पर हमेशा यीशु की गवाही होनी चाहिए। You have to all the time prophesy, Lord, you are the mighty God. You are the God who did miracles. You are the God who opened the eyes of the people. You are the God who healed 12 years old the sicknesses. You are the God who raised Lazarus from the dead after the 4 days. Such a way we should have the testimony of Jesus in our mouth. और आपकी ज़बान पर परमेश्वर की महिमा इस तरह से होनी चाहिए, भविष्यवाणी ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर तूने मुर्दों को जिलाया, तूने रोगियों को चंगा किया, तूने 38 साल से रोगी मनुष्य को ठीक किया, तूने 12 साल से लहू बहती स्त्री के रोग को चंगाई दी, तूने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया वो भी 4 दिनों के बाद, तूने अद्भुत चमत्कार किए, तूने क्रूस पर हमारे लिए हमें अपने आप को दे दिया, तेरे लहू के बहाए जाने से, तेरे कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया। The prophet
prophetical anointing will come upon you today. और वो भविष्यवक्ताएं का अभिषेक खुद ब खुद आपके ऊपर Each and every आएगा। woman, you are going to be prophesy today. आप में से हर एक महिला आज से भविष्यवाणी करेंगी। Then Miriam in the Bible. और फिर बाइबल की मरियम। So Exodus chapter 15 verse 20 to 21. नीति व्यवस्था विवरण 15 उसका 20 से 21। So here the Miriam, the prophet, is rising. और यहाँ पे उस मरियम का जिक्र है जो एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ी हो रही है। The sister of Aaron and Moses. माफ करें, वो निर्गमन है, निर्गमन 15 उसका 20 से 21। So Miriam took a timbrel, the music instrument, in her hand, and all the women followed her with the dance and singing song with the timbrels and dancing. Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for he is highly exalted. Both horses and driver he has hurled into the sea. All the enemies are drawn totally, and they died under the water." और जब हम इस पंक्ति को पढ़ते, इस वचन को पढ़ते हैं, जो हम जिसका जिक्र करते हैं, मरियम वो हारून की बहन थी, मूसा की बहन थी। और यहाँ वचन बताता है उसके हाथ में डफ था और वो उसे बजा रही थी। वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रही थी और वो नाच रहे थे। वो लोग सारे परमेश्वर की आराधना में इतने लीन थे कि वो नाच रहे थे और मरियम गाना गा रही थी। वो परमेश्वर के लिए ऊंचाई पर भजन को गा रही थी। और ऐसा होता है कि वो युद्ध से भरी हुई जो सेना थी, युद्ध के लिए वो सारे घुड़सवारों के समेत उस समुद्र में समा जाती है। In the New Testament, the midnight, Paul and Silas, they are totally bound. They are in the prison. That time they are singing song and praising God with the prophetical worship. That time the earth shaken, the earthquake came. Their bondages are automatically open. They are free when they started praising God through songs and worship. और हम नए नियम में पौलुस और सिलास के बारे में जानते हैं। वो बंदी गृह में कैद थे और जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना शुरू की, वचन इस बात की गवाही देता है कि पृथ्वी हिल गई थी, उनकी जंजीरें टूट गई, वो आज़ाद हो गए और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना और गीतों को गाना जारी There is a रखा। power in your hand. और आपके हाथों में सामर्थ है। Start the powerful worship. उस महान, उस अभिषेक से भरी हुई आराधना की शुरुआत। All the problem will be go away in your life. आपके जीवन से हर एक समस्या और परेशानी चली जाएगी। So you may going through whatever it may be the problem, every woman today, all the problem, the Lord is going to give you the victory over your enemies. तो आप महिलाएं किसी भी समस्याओं से क्यों ना गुजर रही हो, परमेश्वर आपको हर उस समस्या पर विजयी बनाने जा रहा है। So the another woman, Sarah in the Bible, बाइबल में दूसरी महिला का जिक्र हम पाते हैं जिसका नाम सारा है। she is the mother of the promised son Isaac. और वो इसहाक वायदे के पुत्र की माता थी। Genesis 17:19. उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसका 19। And God said, Sarah, your wife, shall bear you a son, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant with his seed after him. तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। Sarah, filled with the spirit of faith. और वो सारा विश्वास की आत्मा से भर गई। How many of you are waiting for your gift of child blessing? आप में से कितने संतान प्राप्ति के लिए अभी तक इंतजार कर रहे हैं? Age is not at all a matter. उम्र कोई बाधा नहीं। The same God who blessed Sarah with the promise and Isaac is alive today to help you. और वही परमेश्वर जिसने सारा की मदद की, उसे इसहाक मिला, वही परमेश्वर आज भी तैयार है आपकी मदद करने के लिए। So you are going to bear a promised child soon. और आप बहुत जल्दी वायदे के संतान की माता बनेंगे। Surely if you believe, you see the glory of the Lord. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। The another woman, Esther, दूसरी स्त्री एस्तर, full of prayer. प्रार्थना से भरी हुई। The prayer was the key for the strength of Esther.
और ये प्रार्थना तो कुंजी थी उसके सामर्थ्य होने की। Esther chapter 4 verse 16. एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16। There was a great distress. The distraction came upon the Jewish people. और यहूदियों के ऊपर एक बहुत बड़ा सताव आया। That time Mordecai, the father of Esther, he is sending a message to her. और उस समय जो मौद्रिके था जिसने एस्तर का पालन पोषण किया था, उस पिता ने उसके पास एक समाचार भिजवाया। Esther take a strong decision in her life. और फिर एस्तर एक बहुत ही मजबूत निर्णय लेती है अपने जीवन में। Esther 4:16 she sent the message to the Mordecai. और एस्तर 4:16 वचन कहता है, वो एक समाचार भेजती है मौद्रिके के पास। Go gather together all the Jews that are present in Susan. उसने कहा सुसान में जितने भी यहूदी मौजूद है उनको एक जगह इकट्ठा करो। Fast and pray. उपवास के साथ प्रार्थना करो। I am going to the king that is not according to the law. मैं उस राजा के पास जा रही हूँ जो कि लेकिन ये नियम के खिलाफ है। Whether I perish, shall I perish? और अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं। That was the prayer of Esther. और ये एस्तर की प्रार्थना थी। Against the rule, she went through the prayer and the faith. नियमों के खिलाफ वो प्रार्थना और विश्वास के साथ राजा के पास गई। And God sent the favor to her. और परमेश्वर ने उसके लिए अनुग्रह भेजा। So in your life something is going in a different way. और शायद इसी तरह आपके जीवन में की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग जा रही हैं। Some financial problem you are going through. आप किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं। So pray like Esther. एस्तर के समान प्रार्थना The करें। things will be changed. चीजें बदल जाएंगी। The people tried to kill Jews. लोगों ने यहूदियों को मारने की योजना बनाई। Through the prayer of Esther, God changed the decree. और एस्तर की प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने उस पासे को पलट दिया। The table turned around. और वो पासा पलट गया। The things are upside down, चीजें changed. बिल्कुल बदल गई। So God is ready to perform the miracle in your life. और वही परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य करने के लिए तैयार है। Pray like Esther today. आज ही एस्तर के समान प्रार्थना All करें। things are possible with God. परमेश्वर के साथ हर एक चीज मुमकिन है। All the impossible thing will be possible with God. परमेश्वर के लिए हर एक असंभव बात संभव है। Increase your prayer like Esther. अपनी प्रार्थना एस्तर के समान करें। Whether shall I perish doesn't matter. I will go in prayer and I will touch the throne of grace today. भले ही मुझ पर ताड़ ना आए, सताव आए या मैं मार भी दी जाऊं, लेकिन मैं फिर भी एस्तर के समान प्रार्थना में परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाऊंगी। Dear friends, for us nothing between God and us. प्यारे मित्रों, हमारे लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। Directly we can reach the presence of the Lord. हम उसकी उपस्थिति में सीधे जा सकते हैं। Jesus already opened the way. यीशु मसीह ने दरवाजा खोल दिया है। So John 14:6. और यूहन्ना 14:6, I am the way. मैं तो रास्ता I हूँ, am the light. मैं रोशनी हूँ, I am the truth. मैं ही सत्य हूँ। The only way is Jesus Christ. एक ही मार्ग है और वो यीशु है। If you know the Lord Jesus Christ more in your life, और अगर आप यीशु को अपने जीवन में और ज्यादा जानते हैं, John 8:32. यूहन्ना 8:32, You know the truth. आप सत्य को जानोगे The truth shall set you free. और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। So if you are knowing the Lord more, और अगर आप परमेश्वर को ज्यादा जानना चाहते हैं, all the doors will be open in your life. आपके जीवन के हर एक दरवाजे खुल जाएंगे। All the closed doors are going to be open in your life. आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे खुल जाएंगे। All the evil spirit destroying you and disturbing you will go away. हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ जो आपको परेशान करती है या परेशानी में डालती है, वो चली जाएगी। The truth shall set you free right now. और ये सत्य आपको इसी समय आजाद करेगा। So pray like Esther. एस्तर के समान प्रार्थना करें। The another woman, Rebecca. दूसरी महिला रिबेका, So she is the wife of Isaac, the promised son. वो इसहाक की धर्मपत्नी थी। So how she blessed by the Lord? और कैसे परमेश्वर ने उसे आशीषित किया? Genesis 24:15. उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय 15 वचन। So the Rebecca
before she chosen as a wife to Isaac, the Eleazar, the steward of Abraham, was praying. और इससे पहले कि रिबेका जो इसहाक की पत्नी थी वो चुनी जाती इसहाक की पत्नी होने के लिए, जो उनका खानसामा था वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। Eleazar finished his prayer. और जब एलियाजर ने अपनी प्रार्थना को समाप्त किया, Genesis 24:15. उत्पत्ति की पुस्तक 24:15 वचन, Rebecca came out with her jar on her shoulder. और तब रिबेका बाहर आती है, उसके कंधे पर एक घड़ा था। Rebecca had a great thirst for the Holy Spirit. रिबेका के अंदर वो पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी प्यास थी। That's why she is coming to the water, the fountain. और इसीलिए शायद वो पानी का घड़ा लेकर आ रही थी। So she was the daughter of Bethuel, son of Milcah. और वो मिल्का के पुत्र बथुएल की बेटी थी। So this Rebecca give water to Eleazar, also to the camels. और रिबेका ने वो पानी का घड़ा एलियाजर को दिया और साथ ही साथ उन ऊँटों को भी पानी पिलाया। So this is the flowing of the anointing. और ये अभिषेक का जो सोता है उस बहने को दिखाता So है। in Rebecca's life, in the Holy Spirit, the rivers of the living water is flowing like a river. और रिबेका के जीवन से पवित्र आत्मा का सोता पानी के सोते के समान बह रहा John था। 7:38. यूहन्ना की इंजील 7:28, Whosoever believe, जो कोई विश्वास करे from the bottom of their heart, the rivers of the living water shall flow. अपने हृदय की गहराइयों से, तो उसके हृदय से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। Rebecca flowing with the guidance of the Holy Spirit. और रिबेका पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल रही थी। The same Rebecca, she conceived the twin boys. और इसी रिबेका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। Genesis 25:22. उत्पत्ति की पुस्तक 25:22। She was going to have twins, and before they were born, they struggled against each other in her womb. और She जब- said, "Why should something like this happen to me?" So she went to ask the Lord for an answer. और जब वो गर्भवती थी, उससे पहले कि बच्चों की पैदाइश होती, वो बच्चे गर्भ में आपस में लड़ रहे थे और उसने परमेश्वर से पूछा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। So she had a habit of asking God to solve her confusion. और उसकी एक आदत थी कि वो हर एक बात के लिए परमेश्वर से परामर्श लिया करती थी। So the women's life, many confusions will be there. इसी तरह महिलाओं के अंदर भी बहुत सारी बातों को लेकर उलझने होती हैं। You should be a person having a close walk with God in prayer. आपको ऐसा बनना है कि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में एक नजदीकी संबंध में The चलें। midst of your confusion, अपनी समस्याओं के बीच में you भी। have to have the habit of asking from the Lord. आपके अंदर परमेश्वर से पूछने की आदत होनी Lord, चाहिए। why there is a problem in my life? क्यों परमेश्वर मेरी जिंदगी में परेशानी है? Lord, where I have to rectify myself? कहाँ परमेश्वर मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत I है? am ready to change, Lord. मैं बदलना चाहता हूँ परमेश्वर, Speak to me. मुझसे बात करे। That was the prayer of Rebecca. और ये रिबेका की प्रार्थना थी। So you have to pray like Rebecca. आपको रिबेका की तरह प्रार्थना करनी है। All the confusion will go away. हर एक उलझन, हर एक समस्या चली जाएगी। All the kind of taking decision, which way we should go, such a time of the taking the decision, you will hear the voice of God in your ears. और हर एक निर्णय करने की असंख्यता चली जाएगी और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। So in your children's life, which course they have to take in the college, which direction, which career they have to go as a mother, if you pray, you will hear the voice of God. This is the way for your daughter. Let her go and take this course. Such a way the Holy Spirit will guide you. आपके बच्चों को क्या करना है, क्या लेके पढ़ना है, वो भविष्य में क्या लेकर क्या बनना चाहते हैं, इन बातों के विषय को लेकर उस परमेश्वर के नज़दीक आए और फिर परमेश्वर आपको बताएंगे कि अपनी बेटी को ये कराओ, अपनी बेटी को इस बात के लिए आगे भेजो, अपनी बेटी की आगे की शिक्षा इस दिशा में करो। Rebecca had a close conversation with God.
रिबेका परमेश्वर के साथ एक बहुत ही नजदीकी बातचीत के साथ जुड़ी हुई थी That's why she received a great blessing in her life. और इसीलिए उसे अपने जीवन में अद्भुत आशीषें मिली। The another woman, Mary at दूसरी महिला बेतनिया की मरियम। So in her life, और उसके जीवन में Jesus performed the miracle. परमेश्वर यीशु मसीह ने चमत्कार किए So that's why she had a great love for Jesus. और इसीलिए यीशु के लिए उसके हृदय में प्यार था। John chapter 12:3. और यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसका 3 वचन। Because of the more love, what she did to Jesus. और चूंकि वो यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने क्या किया? John chapter 12 verse 3. यूहन्ना की इंजील 12:3 वचन। Then Mary took a whole, the kind of a pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on the Jesus' feet and wiped them with her hair. The sweet smell, the aroma of the perfume filled the whole house. तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर का इत्र लिया, जो कि बहुत ही बहुमूल्य होता है। उसने उसे लेकर यीशु के पाँव में डाल दिया और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। The worldly perfume वो सांसारिक इत्र is poured into the body of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के शरीर में उंडेला गया। So after that it became a divine perfume. और उसके बाद वो स्वर्गीय सुगंध बन गया। The presence of the Lord filled that entire room. और परमेश्वर की उपस्थिति ने पूरे घर को भर दिया। So like the Mary, you have to bring the presence of God in your home. और जिस तरह मरियम ने किया है, आपको भी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में लाने की जरूरत है। As a blessed woman, if you are praying, all of your family members should enjoy the presence of the Lord. The sweet aroma of Jesus Christ filled that room. आशीषित महिला के रूप में जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना से यीशु सुगंध के रूप में उस पूरे घर के वातावरण में भर जाता है और आपका परिवार हर एक परमेश्वर को सुगंधित इत्र के रूप में ग्रहण करता है। You are the fragrance of Christ. आप यीशु मसीह की सुगंध हैं। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाएंगे, the people should enjoy the presence of the Lord through you. लोग परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद आपकी उपस्थिति से ले पाएंगे। You are going to be the testimony of Jesus Christ. आप यीशु मसीह की गवाही बनेंगे। The same Mary, और वही मरियम, Luke chapter 10:42 says, लूका अध्याय 4 वचन 40 ऐसा कहता है, she received a very appreciation from Jesus Christ. उससे यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की। So the only thing is necessary. सिर्फ एक चीज जरूरी है। Mary has chosen the good portion. मरियम ने अच्छी चीज को चुन लिया And था। it will not be taken away from her. और वो उससे किसी भी कीमत में वापस नहीं लिया जाएगा। So dear friends, you should be like this Mary. प्यारे मित्रों, आपको इस मरियम की तरह होना है। We are living in the very busy world. हम एक बहुत ही व्यस्त दुनिया में जी रहे हैं। Each and everyone is giving excuse and answer to Jesus Christ. और हर एक यीशु मसीह को समस्या बता रहा है। Lord, the whole night my newborn baby not sleep. That's why not able to pray. ओ परमेश्वर, पूरी रात मेरा नया जन्मा बच्चा सो नहीं पाया तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाई। Lord, my children, they are struggling to go to school. By sending them to school, I am not able to pray. ओ मेरे बच्चों को स्कूल जाना था और इस जद्दोजहद में मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिला। Many excuse. बहुत कारण है आपके पास। But this Mary, लेकिन ये मरियम, she understand only one life in this earth. वो समझ चुकी थी कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही जीवन है। If I focus on Jesus, अगर मैं यीशु को देखती हूँ, my life will be focused by Him. मेरी जिंदगी फिर उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। If I pray more time, और अगर मैं ज्यादा समय प्रार्थना करती I हूँ, can easily complete my household work very easily. मैं घर के कामों को भी आसानी से कर पाऊंगी। Such a heart she had.
और ऐसा तो उसका हृदय था। Where is your priority? आपकी प्राथमिकताएं क्या है? Where is your first priority? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? Are you seeking the God's kingdom? क्या आप परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे हैं? If you are seeking the God's kingdom first, according to Matthew 6:33, और मत्ती 6:33 के अनुसार अगर आप उसके राज्य की खोज पहले कर रहे हैं, all the worldly blessings will follow you automatically. सो हर एक सांसारिक आशीषें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। Mary has chosen the good part. मरियम ने अच्छे भाग को चुन लिया था। Today, every woman, how many of you are having your scheduled prayer time? और आज आप में से कितनी महिलाएं हैं जिनका प्रार्थना का समय निर्धारित है? How many of you are having your scheduled Bible reading time? कितनों का वचन पढ़ने का समय निर्धारित है? You should decide today. आपको आज निर्णय लेना है। If you are not started, start it from today onwards. अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो आज से शुरू करें। You have to choose the good part in your life. आपको अपने जीवन में भले भाग को चुन लेना है। God is having a great plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। More than Mary, God is ready to bless you. मरियम से कहीं ज्यादा वो आपको आशीषित करना चाहते हैं। The last woman we are और- going to meditate from the Bible. और अंतिम महिला जिसके विषय में हम मनन करेंगे, So, she was the mother of Jesus Christ. और वो यीशु की माता थी। She waited for the Holy Spirit. वो उसने पवित्र आत्मा का इंतजार किया। That is very important. ये बहुत जरूरी है। She understand that I need the Holy Spirit. उसे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। Even though I am the mother of Jesus Christ, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यीशु की माता हूँ, I need the Holy Spirit. मुझे उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। Acts chapter 1:14. और प्रेरितों की पुस्तक 1:14 कहता है। So Acts 1:14. प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1:14। This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. All of them are tarried and waiting for the Holy Spirit the day of Pentecost. वचन कहता है ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, और वो तब तक लगे रहे जब तक पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम करना शुरू नहीं किया। Acts chapter 2, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 the verse 1 to 5. वचन 2 से 5। The day of Pentecost came. पेंटिकोस्ट का दिन आया, The heaven opened. स्वर्ग खुल गया, The glory of the Lord came upon the people, the 120 people, they waited on the upper room. और वो उस ऊपरी कोठी में जो 120 लोग इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर की असीम अनुकंपा उन पर आकर ठहर गई। Many women and the Mary, the mother of Jesus Christ, बहुत सारी स्त्रियां और यीशु की माता मरियम, they received the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया, They started speaking their different language. और वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। This is the power of the Pentecost. और ये पेंटिकोस्ट का सामर्थ्य It है। belongs to each and every woman. ये हर एक महिला से जुड़ा है। Today ask the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा से पूछे, If you are not yet filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं, today is the day of the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा का दिन है। Today is the Women's Day. आज महिलाओं का दिन Today is है। the day of the Holy Spirit for you. आज आपके लिए पवित्र आत्मा को पाने का दिन है। How many of you want to fill with the Holy Spirit? आप में से कितने पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? Everyone, you close your eyes right now. अपनी अपनी आंखों को हर एक अभी बंद कर ले। So now we are going to pray for the Holy Spirit anointing. और अब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना Today the करेंगे। Lord is going to fill each and every woman in every home. और आज परमेश्वर हर एक स्त्री को हर एक घर में भरने जा The रहा Holy है। Spirit is coming upon such a people right ओ now. ऐसे लोगों पर पवित्र आत्मा इसी समय उतर रही है। How many of you are going through problems? आप में से कितने लोग समस्याओं से How गुजर many रहे of you are हैं? going through the evil spirit, these unwanted, the bondages of the devil? आप में से कितने उन दुष्ट आत्माओं के चंगुल में है, बंधे हुए महसूस कर रहे Today हैं? the word of God is coming upon you and the Lord is delivering you. ओ आज परमेश्वर का वो वचन आप पर आ रहा है और
आपको छुटकारा दे रहा है। Psalm 107:20, I will send my word and heal. भजन संहिता 107 उसका 20 वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेजूंगा और वो तुम्हें Now चंगाई every देगा। people, those who are going through the evil spirit addiction, right now the Lord is sending the word of God and setting you free. और इस समय हर एक जो शैतान और बंधुआई में है, अंधकार की सामर्थ्य में जकड़े हुए हैं, आदतों में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज रहा है और आपको आजादी दे रहा है। Where there is a spirit of God, there is liberty and deliverance. जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ पर आजादी और छुटकारा है। Receive your deliverance now. अपने छुटकारे को आज ग्रहण करें। The Holy Spirit is coming upon ओ you. वो पवित्र आत्मा आप पर आ रही है। If you are not yet filled with the Holy Spirit, अगर आप अभी तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, ask the Lord. उससे मांगे, Lord, fill me. ओ परमेश्वर मुझे भर दे। Lord, in my family there is a problem. ओ परमेश्वर मेरे परिवार में समस्याएं There हैं, is no peace. कोई शांति नहीं। Lord, all the time we are crying. ओ हर समय हम रोते रहते हैं। Jesus, you came into the world to wipe away the tears of every person. ओ यीशु तू जगत में आया ताकि हर एक के आंसुओं को तू पोंछ दे। Lord, wipe my tears away. ओ परमेश्वर मेरे आंसुओं को भी पोंछ दे। Send your peace in our family. मेरे परिवार में अपनी शांति को भेज। Lord, fill us. ओ भर दे, Fill me, Lord. भर दे मुझे परमेश्वर। How many of you are crying for the Holy Spirit today? आज आप में से कितने पवित्र आत्मा को पाना चाहते Now हैं? the heaven is opening. ओ वो स्वर्ग खुल रहा है। The new anointing is coming and filling वो नया you. अभिषेक आ रहा है और भर रहा है। Receive. इसी समय ग्रहण करें, Receive. ग्रहण करें। The Holy Spirit is filling पवित्र you. आत्मा आपको भर रही है। All the evil spirits are gone. हर एक दुष्ट आत्मा का सामर्थ जा रहा है। Like Miriam in the Bible, you start to praise the Lord and singing song with dancing. ओ जैसे बाइबल में मरियम परमेश्वर की आराधना कर रही थी और गीतों को गा रही थी और नाच रही थी, आप भी करें। Like Miriam, you start to worship and prophesy. ओ मरियम के समान आप आराधना में लग जाए और भविष्यवाणियों को करें। The Lord is sending His mighty anointing upon you. ओ परमेश्वर अपने अद्भुत अभिषेक को आपके ऊपर भेज रहा You are the है। daughter of Zion. आप सिय्योन की बेटी हैं। Oh, daughter of Zion. ओ सिय्योन की बेटी, Rise up. उठ जा। The King is in the midst of वो you. राजा तुम्हारे मध्य में है You will never see any more evil in your और life. तू अपने जीवन में कभी भी बुराई को ना देखेगी। All your days of sorrows are going to be turned into joy. आपके जीवन के जितने भी दुख के दिन थे वो आनंद में बदल गए। Like Mary, you are going to pray more. ओ मरियम के समान आप और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। Like Mary the Magdalene, you are going to meet Jesus early in the morning in prayer. मरियम मगदलिनी के समान आप भोर को यीशु को रूबरू देखेंगे। So everyone, you receive your anointing. ओ हर एक अपने अभिषेक को ले ले। So how many of you are saying, my life is not settled in my life? आप में से कितने कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में स्थिर नहीं हो पाए I हैं? am not yet blessed with a marriage. मेरी शादी नहीं हो पाई है। How the Lord blessed and restored Ruth back in her life. जैसे परमेश्वर ने रूत को आशीषित किया और फिर से स्थिर किया, The Lord is going to restore your life ओ also. परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन को भी करने जा रहा How the है। Lord sent the Isaac into Rebekah's life. जैसे परमेश्वर ने इसहाक को रिबेका की जिंदगी में How the भेजा Lord sent Rebekah into Isaac's और life. जैसे रिबेका को इसहाक की जिंदगी में भेजा, How the Lord sent Ruth to Boaz's life. जैसे परमेश्वर ने रूत को बोआज दिया To Boaz to Ruth. और बोआज को रूत दिया। Our God is a God who directs you the right life partner in your life. हमारा परमेश्वर है वो परमेश्वर है जो आपको सही जीवन साथी की ओर ले जाएगा। How many of you are praying like Hannah in the Bible? और आप में से कितने हन्ना के समान प्रार्थना कर रहे The हैं? Lord is going to bless you with a gift of child very soon. परमेश्वर आपको संतान की आशीष बहुत जल्द देने जा रहे Just हैं। believe and pray like Hannah. विश्वास करें और हन्ना के समान प्रार्थना करें। Cast out all your worries upon the Lord. अपनी सारी चिंताओं को, बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल Hannah दें। never allowed any sorrow in her mind after that. और हन्ना ने उसके बाद अपने मन और अपने दिमाग में
किसी भी तरह की बातों को घर नहीं करने The दिया। joy of the Lord will bring the miracles in your life. परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। Lord bless each and every one of your children. ओ परमेश्वर हर एक को संतान की आशीष से भरेगा। So how many of you are not yet achieved the focused blessings of you in your life? और आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक आशीषों को जिसे वो पाना चाहते नहीं पाया? How the Esther taken up into the palace and she blessed in a greater way. और जैसे एस्तर राजमहल में पहुंचाई गई और ऊंची आशीषों को उसने पाया, The Lord is going to bless you too. परमेश्वर वैसे ही आपको भी आशीषित करने जा You are रहे going to हैं। successful in your competitive exam. आप अपनी परीक्षाओं में सफल होने जा रहे Your हैं। children will receive the best admission. ओ आपके बच्चों को उत्तम स्कूलों में एडमिशन मिलने जा रहा है। Pray like Esther today. आज से ही एस्तर के समान प्रार्थना Fast करें। and pray like Esther today. आज से ही एस्तर के समान उपवास के साथ प्रार्थना करें। The God is going to give you the favorable ओ answer. परमेश्वर आपके लिए आप जैसा उत्तर चाहते हैं वैसा ही उत्तर देगा। Thank you, Lord, for blessing your children. धन्यवाद परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करने We के give लिए। all the glory, Lord. हम सारी आदर महिमा आपको देते Lord, हैं। every woman to rise and build their home from today onwards. होने पाए कि हर एक महिला उठ खड़ी हो और अपने घर का फिर से निर्माण करे। Lord, give them your wisdom and knowledge. ओ परमेश्वर अपनी बुद्धि और क्षमता को दे। The Bible says the wise women build her home. ओ वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। Lord, no home should go through any unwanted issue or problem. ओ परमेश्वर उनका घर किसी भी अनचाही बातों से होकर ना गुजरने पाए। Lord, no home any unwanted divorce, Lord. ओ परमेश्वर घर में किसी भी तरह का अनचाही तलाक की स्थिति ना आए। Every home should be built and restored today. ओ परमेश्वर हर एक घर फिर से बनाया जाए और स्थापित किया Lord, जाए। every home should be restored today. हर एक घर फिर से स्थिर किया जाए। Let your children filled with the wisdom and let them, Lord, build their home with the God's wisdom. ओ परमेश्वर होने पाए तेरे बच्चे अपनी बुद्धि से नहीं लेकिन परमेश्वर तेरी बुद्धिमत्ता से घर का निर्माण करें। Lord, according to Matthew 7:24, let them put the strong foundation upon the rock and build their home. मत्ती 7:24 के अनुसार परमेश्वर उनके घर की नींव चट्टान पर होने पाए। Every woman should be filled with the Holy Spirit. और हर एक महिला पवित्र आत्मा से अभिषेक्त होने पाए। Every woman should have the spirit of prayer and supplication. हर एक महिला के अंदर प्रार्थना की आत्मा होने पाए। Every woman should wrestle in prayer with the Holy Spirit. और हर एक महिला पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना की सामर्थ्य को पाए। Every woman should pray in the Spirit all the time. और हर एक महिला हम निरंतर आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना करे। Every woman should prophesy. और हर एक महिला भविष्यवाणी करे। Every woman should be filled with the gifts of the Holy Spirit. हर एक महिला पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। Every woman should be ready for the end time ministry with the eternal gospel in their mouth. और हर एक महिला अंत के सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार हो जाए। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।